Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students. So students आज हम क्लास 12th का विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी पढ़ेंगे जिसके ऑथर है पर्ल एस बक. इस चैप्टर के मैं 6 वीडियोस 6 पार्ट्स ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ. अब मैं पार्ट 7 कवर करूँगी जो कि पेज नंबर 38 से स्टार्ट है. 38 से स्टार्ट है, मैं 39 से ही स्टार्ट करूँगी इसको. देखो पुराने वीडियोस मैंने आपको सारे एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करे हैं हर पैराग्राफ और एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करे हैं सारे वीडियो सारे पार्ट्स. इसमें मैं आपको पूरा 39 पेज से लेके 47 पेज जो कि आखिरी पेज है वहाँ तक एक बार पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी और पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. इसमें मैं पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन नहीं ले रही हूँ तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है. ठीक है बच्चों. When Hana said to Sadao that why they were not like other Japanese, then Sadao did not answer her and later went into a room where the white man was there and said him rudely that it would be great if the white man collected the strength to stand up on his own feet as soon as possible. Then the white man said thank you to Sadao for saving his life. Then Sadao said to the white man to not to thank him too early because Sadao could send him to the jail also. Then white man felt scared after hearing this. Okay, when Sadao said him that he could send him to the jail also, then white man felt scared after hearing this. So now Hana was doing the household chores and suddenly saw a man in an official uniform who came to the door. She thought that the servants must have told the police already. Hana then ran to the Sadao's room and the officer also followed her, and then suddenly she pointed at the officer and told Sadao about him. Sadao was reading the book at that point and asked the officer that what's the matter, right? The officer said that he had to come with him to the palace because the old general was in pain. So students, in the starting of the chapter, Sadao was not sent with the troops because he had to operate the general. So now he was called to operate. Hana was relaxed to hear this, right? So now Sadao goes to see the general. बच्चों मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ पेज नंबर 39 से 47 तक, राइट? सो आप लोग अपने आप ही पैराग्राफ्स चेंज करेंगे. ओके. सो नाउ Sadao goes to see the general. Now Sadao narrated general the entire story about the white man. The general understood Sadao's condition. Sadao told the general that if he did not care for the American man, but he operated him successfully. The general was happy to find this and find that Sadao was very skilled. The general asked Sadao of his chance of surviving another heart attack, but Sadao replied that he could not survive one more heart attack. The general said to Sadao that he would protect him and would not let anything happen to him because of saving the life of an American man. Sadao then suggested General that there are other surgeons also in Japan, but General replied that he did not trust anyone else as they are trained by the Germans and for them the operation would be successful even if the general died. General then suggested Sadao to silently kill the white man by the general's own private assigns. Students' assigns are professional killers. Okay, so Sadao agreed that idea but didn't tell Hana about anything as she was timid-hearted. Sadao went back to his home and he went into the room of American man who was getting ready to go out into the garden. Okay, and the name of the American man was Tom. So Tom and Sadao started having few conversations and then he said that if all the Japanese would have been like Sadao, then the war would not have happened. Then they both got busy in their own works. Then the first night, Sadao felt that the professional killers were there to kill the American man. But the next morning, he found the American man peacefully sleeping. The same scene happened the next 2 days also. The American man was happy and had shaved his beard also. Okay, nothing happened to the American man.
Sadao then could not take the stress of one more night and told American man that you are so well that you can survive easily if you will be sent to the island with food and extra clothing not far from the coast. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. Sadao gave a torch to him and asked him to signal him two flashes if the American man found himself in any sort of trouble. That night, Sadao slept very well because he finally got rid of the American man. Yumi and other servants also, they all came back. Sadao then told everything to the general that the man had escaped. Okay, he told the general that he had escaped. He didn't tell the right story. The general was shocked because he promised to send professional killers to kill the American man, but could not live up to his promise and felt sorry. General then told Sadao that he is a good man and will be rewarded very soon for his goodness. One day, Sadao was recollecting his past memories that how he met American man, the professor at whose house he met Hana, and his teacher of anatomy who had taught him to cut open the body with a knife. Then how much difficulty he faced to find accommodation in America. He sometimes tried to be thankful for the landlady also who was an old woman, but she was not a kind one, and finally remembered the American man who, despite of being his enemy, he could not kill him and saved his life. ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको 47th पेज तक, जो कि लास्ट पेज है, वहाँ तक आपको इंग्लिश में समझा दिया है. अब मैं इन्हीं सब पैराग्राफ्स को आपको हिंदी में समझाऊंगी. राइट, लेट्स स्टार्ट. जब हाना ने सदाओ से कहा कि वो दूसरे जापानीज की तरह क्यों नहीं है, तब सदाओ ने इस बात पर हाना को कोई भी आंसर नहीं दिया और फिर सदाओ अमेरिकन मैन के रूम में चले गए और थोड़ा रूडली वाइट मैन से बोला कि अब वो अपनी इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर सकते हैं कि वो खड़े हो सके. ठीक है, ये बात किसने बोली? ये बात सदाओ ने वाइट मैन से बोली. इस बात पर वाइट मैन सदाओ को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचाई. सदाओ ने फिर वाइट मैन से कहा कि वो इन्हें इतनी जल्दी थैंक यू ना बोले क्योंकि वो अमेरिकन मैन को जेल भी भेज सकते हैं. यह सुनकर वाइट मैन, अमेरिकन मैन थोड़ा सा डर गया. ओके, अब हाना घर के काम कर रही थी, तभी एक ऑफिसर यूनिफॉर्म में उनके घर में आ गया. हाना को लगा कि सर्वेंट्स ने वाइट मैन के बारे में पुलिस को बता दिया है. हाना ऑफिसर को देखकर सदाओ के रूम में दौड़ कर जाती है और ऑफिसर भी हाना को फॉलो करता है और फिर सदाओ को ऑफिसर से मिलवाती है. उस टाइम पर सदाओ एक बुक रीड कर रहे थे और फिर वो ऑफिसर से पूछते हैं कि मैटर क्या है. ऑफिसर फिर बताते हैं कि सदाओ को उनके साथ पैलेस में आना होगा क्योंकि ओल्ड जनरल पेन में है. स्टूडेंट्स, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सदाओ को ट्रूप्स के साथ इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि सदाओ को ओल्ड जनरल का ऑपरेशन करना था. ओके, इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि उनको क्या करना था, उनको जनरल का ऑपरेशन करना था. हाना ये सुनकर काफ़ी रिलैक्स हो जाती है. हाना को लगता है चलो ठीक है, ये पुलिस का चक्कर नहीं है, ये सर्वेंट्स ने कुछ भी उनके बारे में नहीं बताया है, अमेरिकन मैन के बारे में नहीं बताया है. ये सोचकर हाना बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है. अब क्या होता है, अब सदाओ जनरल के पास जाते हैं. अब सदाओ जनरल को पूरी स्टोरी बताते हैं अमेरिकन मैन की. जनरल सदाओ की कंडीशन को अच्छे से समझते हैं. सदाओ जनरल को बताते हैं कि वो वाइट मैन की कोई केयर नहीं करते पर उन्होंने उसको सक्सेसफुल ऑपरेट किया है. ये सुनकर जनरल बहुत हैप्पी हुए और उनको लगा कि सदाओ बहुत अच्छे हैं अपने काम में, बहुत स्किल्ड हैं. जनरल फिर सदाओ को बोलते हैं कि क्या वो एक और हार्ट अटैक झेल सकते हैं, तो सदाओ उनको बोलते हैं कि वो एक और हार्ट अटैक नहीं झेल सकते. सदाओ फिर जनरल को सजेस्ट करते हैं कि जापान में और भी अच्छे सर्जन्स हैं, पर जनरल कहते हैं कि उन पर बिल्कुल वो उन सर्जन्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जर्मन्स ने करी है और उन सर्जन्स के लिए तो ऑपरेशन तब भी सक्सेसफुल हो जाएगा अगर जनरल की डेथ भी हो जाए तो. सो जनरल फिर सदाओ को सजेस्ट करते हैं कि वो अमेरिकन मैन को उनके प्राइवेट प्रोफेशनल किलर्स के थ्रू मरवा भी सकते हैं. सदाओ इस बात पर अग्री कर जाते हैं पर वो हाना को घर जाकर कुछ नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है कि हाना डर जाएगी. हाना टिमिड हार्टेड है. ओके, उसको डर लग जाएगा. जब सदाओ घर जाकर अमेरिकन मैन के रूम में जाते हैं तो वो गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा होता है.
वाइट मैन, ओके, वो थोड़ा घूमने फिरने की तैयारी कर रहा होता है। अमेरिकन मैन और सदाओ की थोड़ी बातचीत होती है, फिर अमेरिकन मैन और सदाओ से बोलता है कि अमेरिकन मैन जो होता है वो सदाओ से बोलता है कि अगर सारे जापानीज आपकी तरह हो जाए तो वॉर तो होती ही ना। फिर ये बातें करके वो दोनों अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिर पहली रात सदाओ को लगता है कि प्रोफेशनल किलर्स अमेरिकन मैन को मारने आ गए हैं, पर अगली सुबह वह जाकर अमेरिकन मैन का रूम देखता है तो उनको वो सोया हुआ पाता है अमेरिकन मैन को, और अगले 2 दिन भी यही होता है। सदाओ अब अमेरिकन मैन का स्ट्रेस नहीं ले पाता और उसको बोलता है कि अमेरिकन मैन इतने ठीक हो गए हैं कि वो एक आइलैंड दूसरे आइलैंड में जाकर अपना काम कर सकें, ओके, और वो कुछ खाने और कपड़ों, और सदाओ उनको रेडी थे कुछ खाना देने के लिए और कुछ कपड़े देने के लिए, ठीक है। और वो सदाओ अमेरिकन मैन को बोलते हैं कि तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हें वहाँ कोरियन फिशिंग बोट ना दिखे। सदाओ ने अमेरिकन मैन को एक टॉर्च भी दी और कहा कि वो 2 फ्लैशेस मार सकते हैं अगर कोई परेशानी हो तो। उस रात सदाओ बहुत खुशी से सोए क्योंकि उनको वाइट मैन से छुटकारा मिल चुका था। अगले दिन यूमी और गार्डनर और बाकी सर्वेंट्स भी वापस आ गए थे। सदाओ ने जनरल के पास जाकर सब बता दिया कि अमेरिकन मैन भाग गया है। उसने रियल स्टोरी नहीं बताई, उन्होंने कहा कि अमेरिकन मैन भाग गया है। जनरल शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था प्रोफेशनल लोगों को भेजकर अमेरिकन मैन को मरवाने के लिए, ठीक है। तो जनरल ने फिर सदाओ से बोला कि वो एक अच्छा आदमी है और उसको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा उसकी अच्छाई के लिए। एक दिन सदाओ अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज याद कर रहे थे कि वो कैसे अमेरिकन मैन से मिले, कैसे अमेरिका गए, कैसे प्रोफेसर के घर खाना से मिले, कैसे एनाटॉमी के टीचर ने उनको सर्जन बनाया, कैसे उनको इतनी डिफ़िकल्टी हुई अमेरिका में अपना घर ढूंढने में, ओके। वो कई बार थैंकफुल भी फील करना चाहते थे उस लैंड लेडी के लिए जिसके घर में वो रहते थे, बल्कि वो काइंड भी नहीं थी, वो अच्छी भी नहीं थी, तब भी वो थैंकफुल होना चाहते थे। और फाइनली वो अमेरिकन मैन को याद करते हैं कि कैसे एक एनिमी होने के बावजूद भी, एक अमेरिकन मैन उनका एनिमी होने के बावजूद भी सदाओ ने उनकी, मतलब सदाओ याद करते हैं कि मैंने कैसे उसकी भी हेल्प करी और उसकी भी लाइफ को सेव किया। तो बच्चों, मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन 47th पेज तक एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में दे दिया है, राइट? So I hope this video has given you the absolute clarity, so you can like and share this video among grade 12 students, and you can also subscribe this channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.